Hello everyone. This is day 11 of your 30 days to crack CSAT program. I hope you have been following it for the past 10 days. Now, today we would be covering questions on HCF and LCM, but before that, let's look at our detailed planner for the next 20 days. तो देखो यहाँ तक we have covered till day number 10 wherein we have looked at these many topics. Please let me know if you have any doubts, any queries regarding these 10 topics that we have discussed so far. I hope अभी तक इन पे तो आपको अच्छी clarity आ गई होगी and you would be feeling confident as we go forward because यहाँ से रीजनिंग के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, नंबर सिस्टम के कुछ रिपीटेटिव टॉपिक्स आने वाले हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज डेटा सफिशिएंसी. वी हैव फ्यू सेशंस ऑन स्पेसिफिकली डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस. तो ये सेशंस तो आप बिल्कुल मिस आउट मत करना. ठीक है, डे नंबर 21, डे नंबर 24, डे नंबर 38 इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस फॉर यू. बट इन ऑर्डर टू फॉलो दीज सेशंस थरली, आपको इन सारे सेशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए because data sufficiency is just a format using which we ask questions. Now, these are certain playlists that you should definitely watch. One is our detailed PYQ year wise starting from 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 and going forward till or going backwards till 2011. तो ये सारे डिटेल्ड PYQs विद आवर क्लासेस अगर आप कर लेते हो, डेफिनेटली यू विल हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द पेपर. ये आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा. एक एक करके आप इसको कवर करना स्टार्ट कर दो. मेक इट अ पॉइंट दैट यू ट्राई टू अटेम्प्ट द पेपर फर्स्ट. आपको पेपर्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे ऑनलाइन. डाउनलोड करो, अटेम्प्ट करो, उसके बाद ये सोल्यूशंस देखो एंड चीज़ों को रेक्टिफाई करो, मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड दैट इज हाउ यू शुड बी लुकिंग एट इट. Second important thing, here we predicted some of the questions in the year 2024 and 2025, which is also as part of our full length test and practice sheets that we do and the lectures as well. तो ये वो दो डिटेल्ड वीडियो है जहाँ पे इनका प्रॉपर डिस्कशन किया, तो आप इसको भी देख सकते हो. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, starting with our session for today, which is HCF and LCM. So HCF is also known as GCM बोल दो उसे, GCD बोल दो. GCM is basically greatest common measure, GCD is greatest common divisor. So factors are also known as divisor. ये ध्यान रखना, सेम थिंग है. नाउ स्टार्टिंग विद अ बेसिक क्वेश्चन, 6 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे यार 6 के फैक्टर्स एक बार ही लिख लूं क्या? लिख डालो, इजी है, छोटा नंबर है. So 1, 2, 3 and 6 are the factors of 6. What about 8? The factors for 8 are 1, 2, 4 and 8. Since these are small numbers, so this is one approach using which I can actually go ahead. क्या ये सही तरीका है अगर बड़े नंबर्स हैं? बिल्कुल नहीं है. We are trying to understand things now. So we'll go with this method as of now. Tell me the common factors. क्या common दिख रहा है आपको? क्या आपको 1 common दिख रहा है? Yes. क्या आपको 2 कॉमन दिख रहा है? डेफिनेटली. इनमें से हाईएस्ट क्या है कॉमन फैक्टर में से? सो यूड से 2 इज द हाईएस्ट ऑफ देम, देयरफॉर दिस इज द HCF और दिस इज द GCD और दिस इज द GCM. कुछ भी बोल दो, ये 2 है. अब दूसरा प्रोसेस क्या है इसको देखने का? तो आप बोलोगे डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, आई मीन ब्रेकिंग डाउन द गिवन नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स. सो 6 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करके लिखूं, so I would say 6 is basically 2 and then it is 3, so 3 it would be 1. So 6 can be written as 2 into 3, clear है, power 1. Then 8 can be written as basically 2 cube. 8 को कैसे करोगे? 2 से करोगे तो it would be 4. Then again with 2 it is 2, again with 2 it is 1. So basically 8 is 2 into 2 into 2 or 2 cube. And this is 2 to the power 1, 3 to the power 1. If I take into consideration these two, आप मुझे ध्यान से बताओ इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? आपको सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है. So that is the highest common factor. Whichever common factors you pick and the highest of them. Obviously for any given number the factors start from 1. तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करने पे 2 and 3 आएगा बिकॉज वी आर डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन. बट इसका ये मतलब नहीं कि इसके फैक्टर 1 नहीं है. फैक्टर 1 तो डेफिनेटली है, फैक्टर 1 भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा. आई होप ये क्लियर है. अब जैसे मैं कोई और बड़ा नंबर ले लेता हूँ कि ये चीज़ें और आसान हो जाए आपके लिए. लेट्स सपोज इफ आई डू इट फॉर 30 एंड देन आई डू इट विथ 30 and 40 में भी.
So I'll try to do it individually. 30 can also be written as, with 3 it is 5 and with 5 it is 1. So 30 can be basically written as 2 into 3 into 5. 40 is basically 8 into 5. So 40 को मैं 8 into 5 ना लिख के 2 cube into 5 बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ 40 is basically with 2 it is 20, with 2 it is 10, with 2 it is 5 and with 5 it is 1. तो मैंने क्या करा, मैंने इसको शॉर्टकट में बोला कि this is 8 into 5. 8 is not a prime number. We are doing prime factorization. तो 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखोगे, सो 2 क्यूब. 5 इज अ प्राइम नंबर, सो कीप इट टू दैट. अब आप बताओ इनमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको. सो यू आर सीइंग 2 एज कॉमन. सो 2 बाहर निकाल लो, एक बार ही 2 कॉमन है. क्या कुछ और कॉमन है? 3 कॉमन है क्या? नहीं है. 5 कॉमन है क्या? यस, 5 इज ऑल्सो कॉमन. सो 2 into 3 is basically 10. 10 is our highest common factor for these two numbers, and definitely 10 is the highest common factor. इसका एक फैक्टर 10 होगा, इसका भी एक फैक्टर 10 होगा, और वो हाईएस्ट में कॉमन होगा. नाउ देयर इज अ डिफरेंस व्हेन वी लुक एट एलसीएम एंड एचसीएफ. एचसीएफ इज फैक्टर्स, एलसीएम इज मल्टीपल्स. जैसे कोई एक नंबर है 2 या 6, 6 के मल्टीपल्स क्या क्या है? 6, 12, 18. वो आगे जाने की बात कर रहा है. फैक्टर्स एक फाइनाइट क्वांटिटी है. इट इज लिमिटेड टू 1 एंड गोइंग अप टू दैट नंबर. खत्म हो जाएगा फैक्टर्स. नाउ factor based questions कैसे? Factors are also known as divisors. Factors, largest length of any particular thing, small size pieces, greatest possible value, bottle sizes, ये कुछ keywords हैं जो आपको help करते हैं question में identify करना. But मैं बोलूँगा अगर कभी भी ऐसा कोई scenario आ रहा है कि we have a number and if this number is required, और मैं यहाँ पे कोई नंबर बोल रहा हूँ, let's say 495, 495 डिवाइडेड बाई n, और मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो n अगर इसको डिवाइड करा, दैट मीन्स n इज गोइंग टू बी अ फैक्टर फॉर दिस. तो अगर इस पॉइंट पे n है तो इट इज अ क्वेश्चन ऑन फैक्टर. बट इफ n इज हियर एंड वी आर डिवाइडिंग n बाई 495, दैट मीन्स 495 इसका एक फैक्टर होने वाला है. तो n क्या है उस केस में? इसका मल्टीपल है. तो हियर वी आर लुकिंग एट common multiple questions. So this is one differentiation between HCF and LCM. Okay. LCM क्या है? छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 और 3. तो आप बोलोगे कि यार 2 and 3 का LCM कैसे निकालना है? तो सिंपलेस्ट तरीका है 2, 3, let's do it together. So with 2 it is 1, this is 3, with 3 it is 1 and 1. LCM is basically product of the factors or prime factors. So 2 into 3, which is 6. So LCM of 2 and 3 is basically 6. इसको समझने के लिए this is the best way to do LCM of any given number or sets of numbers. ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि 2, 3, 4, 5, 6 कैसे निकालोगे LCM, तो आप एक एक करके सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करोगे. फाइनल आंसर आपका सारा प्रोडक्ट ऑफ the prime factors आएगा. The product of prime factors is the LCM. What is LCM? LCM is basically product of prime factors collectively. ठीक है. Now अगर मैं मान लो बात करता हूँ कि we have day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7, day 8, day 9, day 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा कुछ. ठीक है. और मैं बोलता हूँ कि I'll take the sessions every second day. So if it is today is first day, so I took the session. ठीक है, जैसे मान लो I take the session on every second day. So will I be able to take the session on the first? No. So I'll be able to take the session on second? Yes. Will I be able to take the session on the third? No. So I'll be able to take the session on fourth, sixth, 8th, 10th, 12th, 14th. ये बात समझ पा रहे हैं आप? Now, with 3 I say third day. So third, then I would be able to take it on 6th, 9, 12 इस तरीके से. Remaining I will not be able to take the session. है ना, इस तरीके से I'll just rule them out. But if you look closely, आपको एक कनेक्टिंग पार्ट मिल रहा है 6. 6 पे both are occurring together. अगेन 6 का जो मल्टीपल है दैट इज 12, 12 पे भी both are occurring together. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? This actually indicates that this is basically the common point for 2 and 3 both. The first common point is 6. So the lowest common multiple is 6. The lowest common multiple is 6.
And moving forward, we will have 12. They will again meet at 18, then 24, then 30. इस तरीके से आगे चलते चले जाएगा. Clear है? All right. Now, LCM based question, these are the certain criteria. Please go through them. Meeting again and again, same point again. I mean, this question is framed as there are three persons, they start together to walk around a circular track and they meet after these many times. ऐसा कुछ. Traffic light based question. So there are three lights in a traffic signal. A turns green every 3 seconds, B turns green every 6 seconds, C turns green every 9 seconds. If in a time span of maybe 500 seconds, how many times would they blink at the same time? ऐसा कुछ क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2023 में पूछा भी गया है सिमिलर एंड पे. कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम निकालो और आगे चल के उसको बस देख लो. ओके. आफ्टर हाउ मच टाइम सर्कुलर ट्रैक प्रॉब्लम, बेल्स रिंगिंग टुगेदर वाला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. पीपल रनिंग अराउंड टुगेदर. ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना. Smallest number which when divided by 2 and 3 leaves 1 as remainder. Smallest number which when divided by 2 and this number when divided by 3 should leave us a remainder of 1. किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे, 1 रिमाइंडर कब आएगा? 2 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर कब आएगा? ओनली व्हेन द नंबर इज एन ऑड नंबर. अगर इवन है तब तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा. सो n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 3, n इस तरफ है, तो क्या ये n 2 का फैक्टर हो सकता है? नो. n इसका बड़ा नंबर है, 2 इज गोइंग टू बी अ फैक्टर. अगर मैं 1 हटा दूं तो 2 फैक्टर हो जाएगा, 1 इसमें से हटा दूं तो 3 फैक्टर हो जाएगा. हाँ है ना? तो बेसिकली क्या करना है कि ये n जो है ये मल्टीपल है. अब आप इसको कैसे देखेंगे? आप सबसे पहले निकालो 2 और 3 का LCM. सो LCM ऑफ 2 and 3 is basically 6. 6 when divided by 2, the remainder is 0. 6 when divided by 3, the remainder is also 0. But we need the remainder to be 1. So our answer is finally, with this set of data, LCM plus remainder. ये बात समझ में आ रही है? जो भी LCM निकला उसमें 1 ऐड कर दो. जैसे 6 आया LCM, 1 ऐड कर दूं अगर मैं, 6 plus 1 we get 7. 7 divided by 2 and 7 divided by 3, both of these cases the remainder is going to be 1. For both of these cases the remainder is 1. हाँ है ना? और ये सबसे smallest number है. अब इसी क्वेश्चन को I can rephrase it as smallest 2-digit number. I can also look at maybe smallest 3-digit number. I can also look at smallest 4-digit number. इस तरीके से I can frame the question. और अब ये जरा interesting question बन जाएगा. Since I don't have the option, I'll have to go through with this method. I'll need to look at the least common multiple. So I will be looking at multiples and then plus the remainder. Remainder क्या है? 1 है. देखो, I know the result 6 पे remainder 0 आएगा. नेक्स्ट रिमाइंडर 0 कब आ सकता है? इसके मल्टीपल्स पे आएंगे. तो 6 पे अगर आ रहा है, 6 इज नॉट अ 2-digit नंबर. नेक्स्ट कब आएगा? 12. नेक्स्ट कब आएगा? 18. रिमाइंडर 0. स्मॉलेस्ट पे जाना है तो 18 को रूल आउट कर दो, इसके आगे तो स्मॉलेस्ट नहीं होगा. 12 इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर. बट व्हेन यू डिवाइड 12 by 2 or 3, the remainder is 0. You need the remainder to be 1. So you do common multiple plus remainder. 12 plus 1, we get 13. 13 when divided by 2 or 3 will always give you the remainder as 1. क्या ये क्लियर है? तो हमने क्या करा? कॉमन मल्टीपल के भी मल्टीपल्स पे गए. बेसिकली जो कॉमन मल्टीपल आया था हमारा 6, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके और मल्टीपल्स पे गए अपने लोग. एंड देन वी सिंपली एडेड आवर रिमाइंडर. स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको कैसे जल्दी कर सकता हूं? स्मार्टेस्ट तरीका ये होगा कि मुझे पता है स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इज 100 और मुझे पता है LCM है 6. तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं 100 by 6, तो ये क्या आ जाएगा? एक बार में जाएगा, so it would be 6. Then we have 4 and 0 40, so it will go again 6 times. Then it will go up to 36. We are left with 4 remainder आ रहा है.
इसका ये मतलब है कि ये 96 तक तो चले जाएगा, 96 तक आई विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम, बट it will be left with 4 remainder. So if I add 2 here, so 101, 100 is also not divisible, 102 is basically the common multiple of 6, common multiple of 2 and 3 which is 6. ठीक है, 102, 102 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं या 3 से करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए। द आंसर इज 102 प्लस 1 विच इज 103। आप अगर 100 पे चेक करो तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 101 पे रिमाइंडर 2 से तो 1 आएगा, बट अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। क्लियर है, मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए। सो 103 इफ आई डिवाइड इट बाय 3 एज वेल एज 2, द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1। एंड please tell me what should be the smallest 4-digit number for this. I hope you have understood the concept. Concept क्या है, आपको क्लियर है कि आपको कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, वो कॉमन मल्टीपल मिल गया तो आप रिमाइंडर्स को ऐड करते चले जाओ, और आप ये देखो कि आपको 2 डिजिट के नंबर्स पे जाना है, 3 डिजिट के नंबर्स पे जाना है या सिंगल डिजिट के नंबर्स पे जाना है। दैट इज वन वे, बट ये प्रोसेस है पूरा। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शंस है ना, तो आप और स्मार्टर तरीके से डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो और इन क्वेश्चंस को इन नो टाइम सॉल्व कर सकते हो। आई विल गिव यू एग्जांपल। आई होप यू हैव कमेंटेड द आंसर फॉर दिस। आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। तो मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ और ये एक बारी नजर डालो। ये 2022 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, मतलब मैं एक 4 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं, which when divided by, so number when divided by 6 or 9 or 12 or 15 or 18 should give you the remainder as 3। तीनों केसेस में, पांचों केसेस में रिमाइंडर 3 आना चाहिए, यही वो बोल रहा है। अब इसको कैसे देखना पड़ेगा, मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 3 हटा दूं तो वो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा। नंबर आपका किस फॉर्मेट पे होगा, नंबर इज बेसिकली एलसीएम, और सिंस हियर नॉट एलसीएम, इनका जो भी आएगा कॉमन मल्टीपल बोल सकते हो आप इसे, कॉमन मल्टीपल प्लस रिमाइंडर। तो अगर मैं कॉमन मल्टीपल देखूं, मतलब अगर मैं इसको डिविजिबल करना चाहूं तो मैं रिमाइंडर इससे अगर हटा दूं तो ये बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे देखो आप, अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात करूं तो उस केस में रिमाइंडर तो 0 आता है और 1 ऐड करने पे नंबर मेरा 7 हो रहा है। तो अगर मैं रिमाइंडर हटा दूं तो वो वापस से 6 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आ जाओ 2 डिजिट का नंबर 12 हो जाएगा। 1 आ रहा था, नंबर 13 था, अगर मैं 1 हटा दूं तो ये वापस से 12 होगा। सिमिलरली इफ आई मूव फॉरवर्ड हियर, आई नो कि इन नंबर्स में से अगर मैं क्विकली रिमाइंडर्स हटा दूं, -3, -3, -3, -3, तो वॉट एवर नंबर आई हैव लेफ्ट विथ should be exactly divisible by any of these numbers and all of these numbers. ये clear है? तो here we quickly get 1060, here we have 1070, here we have 1080, and here we have 1180. चलो मुझे आप बताओ, स्मॉलेस्ट और इजिएस्ट ऑफ द रूल किसका है? 9 का नहीं है क्या? 9 का अगर मैं रूल चेक करूं, इट सेज द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो इफ आई टेक द सम ऑफ डिजिट्स फॉर 1 + 0 + 6 + 0, इट इज 7। क्या ये 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो नो मैटर ये इससे डिविजिबल हो भी जाए, लेकिन ये इससे तो नहीं हो रहा है। तो अगर ये इससे नहीं हो रहा है डिविजिबल, क्या ये कॉमन मल्टीपल हो सकता है? कॉमन हो सकता है क्या मल्टीपल? बिल्कुल नहीं। तो ये मेरा आंसर नहीं है। और आप देख रहे हो -3 करके लिखने में टाइम नहीं लगेगा, या जो भी रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट करके आप जो नेक्स्ट वैल्यू लिखोगे उसको लिखने में आपको टाइम नहीं लगता है। नाउ 107, 7 और 1 8, 8 इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, रूल इट आउट, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट 1080, 8 + 1 इज 9, ये 9 से डिविजिबल है तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, इसको अभी मार्क करके छोड़ दो। आगे वाला एक बार चेक कर लो, 8 1 1 10, क्या 10 9 का मल्टीपल है? नहीं है। तो अगर 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, दिस इज 100% गोइंग टू बी द करेक्ट फिट। आप चेक कर लेना, 1083 वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब इसको देखने का तरीका क्या है, एक बार इस पे भी काम कर लेते हैं। आपको निकालना है 3, 9, 12, 15 एंड 18,
इनका पहले आप एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालने के लिए आप 2 से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे आपका एलसीएम निकलेगा कुछ, चलो चेक कर लेते हैं। 3, 9, 6, 15 एंड 9 है ना। कुछ और, चलो ये भी है। तो 3, 9, 3, 15, 9, फिर 3 से करते हैं 1, 3, 1, 5, 3, फिर 3 से जाएगा एक बारी और एक बारी 5 से जाएगा। अब मेरे लिए एलसीएम क्या निकल के आ गया? एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या ये क्लियर है? दिस इज गोइंग टू बी आवर एलसीएम। नाउ 5 इंटू 2 इज ऑलवेज 10, और ये क्या है? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 10 इज बेसिकली 180। तो मेरा एलसीएम क्या निकल के आ गया? 180 इज माई एलसीएम। रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो आप अगर इस एलसीएम पे 3 ऐड कर दो और उसके बाद इन सारे नंबर से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर हमेशा 3 मिलेगा। ये क्लियर है? बट वी आर लुकिंग एट 4 डिजिट नंबर, तो मुझे 4 डिजिट का नंबर पे जाना है। आई नो 180 के जो मल्टीपल्स हैं वो 5 टाइम्स पे कितने होने चाहिए? तो 180 इंटू 10 इज बेसिकली 1800। 5 टाइम्स का मतलब क्या है? 10 का हाफ कर दो तो इसका हाफ करोगे 900। 900 भी एक 3 डिजिट का ही नंबर है, इस पे और 180 ऐड कर दो तो वी गेट 1080। 1080 is our common multiple. Let's add remainder to this. Remainder is 3. So इसका आंसर बना 1083। क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हैं? This is obviously the approach to solve this, but this is a smart approach with which we can actually take care of such problems in no time if we have options. अगर ये theta based होता, type in the answer, which is common question for CAT, we may not be able to solve this with the help of this approach. But यहाँ पे with the options it is doable, और आपको भी शायद इसको एग्जाम में ऐसे कर लेना चाहिए because ये आसानी से हो जाएगा only if you have certain command regarding few divisibility rules. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है? इस क्वेश्चन में तो नहीं आ रहा है, बट ऐसे आ क्या सकता है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये आ सकता है कि इफ वी हैव दिस नंबर, लेट्स से दिस नंबर, दिस इज नॉट डिविजिबल या दिस इज डिविजिबल बाय 9, एक और ऐसा नंबर आ सकता है जो 9 से डिविजिबल हो। तो दो ऑप्शंस में अगर मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, व्हाट आई डू, आई ट्राई टू चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ अदर नंबर। जैसे यहाँ पे 15 है तो ये नेचुरली 5 इंटू 3 से भी डिविजिबल हो रहा होगा, तो मैं 5 से फिर चेक करना स्टार्ट करूंगा या किसी और नंबर से चेक करना स्टार्ट करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is basically a question on 2020. You can give this a try. What is the least 4-digit number which when divided by either 3, 4, 5, 6 leaves a remainder of 2 in each of these cases? What do you think is a possible fit here? बिल्कुल सिमिलर एंड पे क्वेश्चन है। आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3, 4, 5, 6। आपका जो आंसर आएगा वो होगा एलसीएम प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पे 2 है और 4 डिजिट के नंबर पे जाना है, तो शायद मुझे कॉमन मल्टीपल पे जाना पड़ेगा आगे बढ़ के, और फिर मुझे रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा 2। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, बट आई एम सेइंग लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ द डिविजिबिलिटी रूल। द डिविजिबिलिटी रूल फॉर this says you first subtract 2 from each of these numbers. आपके पास क्या वैल्यूज बन के आएंगे? So you'd be getting 1 0 1 0, you'd be getting 1 0 2 0, you'd be getting 1 1 2 0, you'd be getting 1 2 2 0, right? These are your resultive values. अब इनमें देखो 3 गिवन है। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। आप अगर यहाँ पे 3 से चेक करो, 1 + 1 दिस इज नॉट डिविजिबल, 2 + 1 दिस इज डिविजिबल, 2 + 1 + 1 4, 4 इज नॉट डिविजिबल, 2 + 2 + 1 दिस इज 5, नॉट डिविजिबल। तो ये आपके लिए आंसर बनेगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट फिट। बट आई नीड यू टू गो थ्रू दिस मेथड एंड ट्राई टू सॉल्व इन योर फ्री टाइम। क्या आप इसको इस मेथड से भी बना पा रहे हो? बिकॉज इन एग्जाम्स यू वुड बी गेटिंग ऑप्शंस। आप ऑप्शंस के थ्रू ही ट्राई करो और आप देखो कि क्या ये आपसे सॉल्वेबल है या नहीं है। क्लियर है? बट आप देख पा रहे हैं विद दिस मेथड इट बिकम्स रिलेटिवली इजियर फॉर अस टू लुक एट सच प्रॉब्लम्स। ऑल्सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। ये चांसेस है आपसे पूछा भी जा सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18, इनसे अगर आप इसे डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आएगा। रिमाइंडर 5 का क्या मतलब है? आप यहां से 5 एलिमिनेट कर दो, सेम रिमाइंडर है तो 5 एलिमिनेट करो, क्या रिजल्ट बनेगा जल्दी बताओ। तो दिस वुड बी 950, दिस वुड बी 900,
दिस वुड बी 990, दिस वुड बी 750, है ना। अब मुझे इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, मुझे चाहिए 12 का डिविजिबिलिटी रूल, 15 का डिविजिबिलिटी रूल, 18। दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अगर आपने डे 5 नहीं किया है तो एक बारी उसको देख लेना, डे 5 डिविजिबिलिटी रूल। मैं यहाँ पे जल्दी आपको बता रहा हूँ। कॉम्पोजिट नंबर्स हैं 12 4 एंड 3, 15 3 एंड 5, 18 2 एंड 9। अब इनमें से देखो इजिएस्ट ऑफ द इजिएस्ट क्या है, 9। 9 प्लस 5 कितने हो गए? क्या 9 प्लस 5 9 का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। 900 बिल्कुल हो सकता है, 990 बिल्कुल हो सकता है, 750, 7 प्लस 5 इज 12, दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। अब मैंने 9 से तो एग्जॉस्ट कर लिया रूल, अब मैं किससे चेक करूं? देखो बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 एज वेल, तो क्या मैं 4 से कर सकता हूं? If you remember the rule of 4, it says focus on the last two digits of the given number. अगर ये 1244 एक नंबर है, मैं उसके सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स पे फोकस करूंगा, मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया तो मेरा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। दैट इज द रूल फॉर 4। आई होप यू हैव अ क्लैरिटी। चलो देखते हैं 4 से डिवाइड करके। अगर डबल जीरोस हैं तो भी होता है डिविजिबल, ये आपको बताया था मैंने। डबल जीरोस है, इसका ये मतलब है ये 100% 4 से डिवाइड हो रहा है। 90 अगर है, 90 क्या 4 से डिवाइड होगा कभी भी? 90 नहीं होगा ना, 92 इज अ मल्टीपल, सो ये नहीं होगा। एंड देयरफॉर वी कैन रूल ऑप्शन सी आउट। आई कुड से ऑप्शन बी, और एंड आई थिंक ये आपने कमेंट कर दिया होगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? तो देख सकते हैं ऐसे करके, इफ यू हैव सर्टेन क्लैरिटी गोइंग फॉरवर्ड, तो इन क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से देख सकते हो। चलो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये जरा सा डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है उस पर भी काम करेंगे। कि यहाँ पे इफ यू पिक अ पर्टिकुलर नंबर तो उससे कुछ और रिमाइंडर आ रहा है, दूसरा नंबर देखोगे तो रिमाइंडर कुछ और आ रहा है, रिमाइंडर्स आर चेंजिंग। सो इफ आई टेक द नंबर, आई डिवाइड द नंबर बाय 3, उस केस में रिमाइंडर आ रहा है, when you divide the number by 3 leaves a remainder of 1. When you divide the same number by 5, the remainder is 3. When you divide the same number by 6, the remainder is 4. When you divide the same number by 7 or 9, the remainder is 7. पिछले क्वेश्चन में क्या आसान था? क्या आपके लिए चीजें आसान थी? ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट रिमाइंडर्स का, इसको रेसिड्यू कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सॉल्व करने का तरीका भी है, बट मैं बोल रहा हूँ आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने सिखा दिया है। ऐसे क्वेश्चंस पे वो अप्लाई हो भी जाता है, तो क्यों ना आप उसको सेम अप्लाई करो और चेक करो। मुझे रूल ऑफ 3 आता है क्या? डू यू नो हाउ टू चेक अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, और 5 और नॉट? 5 के लिए क्या करना होता है? द लास्ट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 सेज द लास्ट डिजिट शुड बी ईदर 0 और 5। तो मैं पहले अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 3। तो 3 आप एलिमिनेट कर दो सारे टर्म से। तो जैसे आपने 3 एलिमिनेट करा, ये क्या बन जाएगा? दिस वुड बी 1065, सॉरी 1065। ये 5 से जरूर डिविजिबल है, तो ये हो सकता है पॉसिबल आंसर। 3 हटाओगे तो ये बनेगा 1069, दिस इज नॉट डिविजिबल, है ना। ये बनेगा 1075, दिस इज डिविजिबल, तो ये हो सकता है। ये बनेगा 1079, ये नहीं पॉसिबल है, तो दीज टू आर एलिमिनेटेड। वी हैव चेक्ड विथ 5। अब मुझे नंबर को चेंज करना होगा। मैं 3 से चेक कर सकता हूँ क्या? 3 से भी चेक कर सकता हूँ। 3 से चेक करने के लिए रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1। तो मुझे बस इन दो नंबर्स पे चेक करना है। तो अगर मैं इसमें से 1 हटा दूं तो इट वुड बी बेसिकली 1067। क्या ये 3 से डिविजिबल है? चेक कर लो, 6 से हो गया, 3 से तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये रूल आउट हो गया। इसको चेक करते हैं। 1078, द रिमाइंडर इज 1, सो -1, 1077। 7 7 14 और 1 15, 15 is divisible by 3, therefore this is the correct fit. I hope you have a clarity. क्या प्रोसेस है उस पर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगा आपको, एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा। ये आपको अगर डिटेल में भी देखना है, द वीडियो सोल्यूशन, द डिटेल वीडियो सोल्यूशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, बट विद द हेल्प ऑफ वन कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड, आप देखो क्या वो यूनानिमसली अप्लाई हो रहा है। सिंस दिस इज बीइंग अप्लाइड यूनानिमसली एंड विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस वी कैन डू इट, इसलिए मैं ये चीज बता भी रहा हूं आपको।
अगर मुझे ऐसा कुछ भी लगेगा कि दीज रूल्स आर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड, मतलब आप इसको हर जगह फॉलो नहीं कर सकते हो, तो आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू गो फॉर शॉर्टकट्स। ओनली व्हेन दिस इज फॉलोड, तो मैं आपको बता भी रहा हूँ, आप शॉर्टकट्स के थ्रू देख सकते हैं। नाउ जस्ट इन केस you wish to solve this, with the help of the residue method, तो एक बारी जल्दी उसको भी नजर डाल लेते हैं कि कैसे हमें उसको चेक करना है। लेट्स लुक एट इट क्विकली, है ना, जल्दी ध्यान डालते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यू, करना क्या होता है यहाँ पे, आपको चेक करना है कि अगर 3 से डिवाइड करा नंबर को तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, द रिमाइंडर इज 1। If you divide the number by 5, the remainder is 3. If you divide the number by 6, the remainder is 4. And when you divide the number by 9, the remainder is 7. So what is the residue? Residue is basically 3 minus 1, which is 2. 5 minus 3, which is again 2. 6 minus 4, which is again 2. 9 minus 7, which is again 2. The residue is usually same for these numbers. ठीक है, रेसिड्यू सेम है। नाउ आवर आंसर इज बेसिकली द लीस्ट कॉमन मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल माइनस रेसिड्यू, नॉट प्लस। रेसिड्यू माइनस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉमन मल्टीपल निकाल लो इन नंबर्स का, इसके बाद कॉमन मल्टीपल पे चले जाना, बिकॉज वी आर लुकिंग एट अ 4 डिजिट नंबर, तो आगे जाना पड़ेगा कॉमन मल्टीपल से और सब्ट्रैक्ट कर देना 2, तो आपका रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। चलो, अगर ये क्लियर है, क्या आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। M is a set of positive integers, ये फॉलो किया गया। M is a set of positive integers. Positive integers are nothing but natural numbers. डायरेक्टली ऐसे ही बोलो इसे, जीरो के बाद वाले इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स, एक ही बात है। When you divide them by 2, 3, 4, 5, 6, leaves remainder 1, 2, 3, 4, 5 respectively. How many integers between 0 and 100 belong to the set M? Set M में वैसे सारे integers हैं जो ये property follow कर रहा है। क्या है property? If you divide the number by 2, the remainder is 1. But when you divide the same number by 3, the remainder is not 1, the remainder is 2. When you divide the same number by 4, the remainder is 3. When you divide the same number by 5, the remainder is 4. And when you divide the same number by 6, the remainder turns out to be 5. अब इसका रेसिड्यू क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2 minus 1 which is 1, 3 minus 2 which is 1, 4 minus 3 which is 1, 5 minus 4 which is 1, 6 minus 5 which is 1. मुझे कैसे सॉल्व करना, आई नीड टू लुक एट द एलसीएम और कॉमन मल्टीपल माइनस रेसिड्यू। Okay, let's look at the common multiple of 2, 3, 4, 5, 6. So we have 2, 3, 4, 5 and 6. चेक करते हैं, 2 से 1, 3, 2, 5, 3, फिर 2 से 1, 3, 1, 5, 3, फिर 3 से एक बारी जाएगा, 3 वाले सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, 5 से एक बारी जाएगा, सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा आप बताओ, 5 into 2 into 2 which is basically 5 into 2, 10, 10 2 is 20, 20 into 3 is 60. So our answer is 60 minus residue which is 1, so 59. 59 is one such number. Next number क्या होगा, तो common multiple 120 minus 1 which is 190. Next क्या होगा, 180 minus 1 which is 179. मुझे 0 से 100 के रेंज में चाहिए, 0 से 100 के रेंज में सिर्फ 59 ही होगा। So how many integers belong in this range? Only one integer belong in this range. Clear है? And that number, if you ask you, that is 59. अब चेक करो, क्या 59 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, 59 is our number. 59 when I divide it by 2, the remainder is 1. 59 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर आएगा। कैसे आएगा, 9 एलिमिनेट कर दो, 5 को 3 से डिवाइड करो, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। 59 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा। 59 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 4 आएगा। 59 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 5 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स एंड रेसिड्यू। नाउ दीज आर ऑन द इजियर एंड टू केटर। दिस मे सीम लाइक अ बिट लेंथी, मतलब रीडेबल
2013 का क्वेश्चन है, but it is one of the easiest. There are 5 hobbies. The different criteria is given. The gardening groups meet every second day. The electronics group meet every third day. Chess group meets every fourth day. Yachting groups meet every fifth day. The photography meets every sixth day. 2, 3, 4, 5, 6. अभी आपने सॉल्व किया था 2, 3, 4, 5, 6. आपको पता है इनका एलसीएम क्या आएगा? The LCM for these numbers is basically 60. ठीक है? How many times do all 5 groups meet on the same day in 180 days? So 180 days में 180 by the LCM, it will give you 3 meetings. So 3 times. Option A is our correct fit. Clear है? कैसे करना है? ये easier end पे है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. Let's move forward. चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो. दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल एज वेल. इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2019. द क्वेश्चन इज, in a school every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if, कोई फुटबॉल प्लेयर है if and only if the identification number, the ID card number is divisible by 4. So ID card number is basically a multiple of 4. So ID card numbers could be 4, 8, 12, 16, 20, 24. Whereas a student is a cricketer, footballer, cricketer, all if and only if the number is divisible by 6, so 6n. 6 के मल्टीपल, सो अगर जिसका भी आइडेंटिफिकेशन नंबर 6 है, 12 है, रोल नंबर आईडी कार्ड नंबर 18, 24, 30, 60, वो सारे होंगे क्रिकेटर. If every number from 1 to 100 is assigned to a student, 1 से लेके 100 तक assigned है स्टूडेंट्स को, then how many of them play cricket as well as football? Cricket as well as football का मतलब है there has to be a common connect between these two. So what is a common connect of 6 and 4? The common connect is basically the LCM. The LCM of 4 and 6 is actually 12. अब ये सोच के बताओ, मैं बोल रहा हूँ मेरा आईडी कार्ड नंबर इज 12. तो अगर मेरा आईडी कार्ड नंबर 12 है, आई एम एलिजिबल टू प्ले फुटबॉल, यस, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4. आई एम एलिजिबल टू प्ले क्रिकेट बिकॉज यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6. सो आई कैन प्ले बोथ. सो प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, द फर्स्ट नंबर वुड बी 12. द नेक्स्ट नंबर वुड बी 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. क्लियर है? ये सारे नंबर्स होंगे बिकॉज आई हैव लिमिटेड माई सेल्फ टू 100. जल्दी कैसे करना है? हाउ मेनी ऑफ देम? 100 बाई 12. फोकस ऑन क्वोशंट. क्वोशंट क्या आएगा? क्वोशंट 8 आएगा. 12 into 8 is 96. So 8. How many of the students? There are 8 students who would be playing like this. Moving on. A bell rings every 2014 का क्वेश्चन है. ये देखो, ये सेम क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था कि they meet after these many times. So bell number 1 rings every 18 minutes. A second bell B and a third bell C. First वाला every 18 minutes. Second वाला every 24 minutes. And third is every 32 minutes. Now, अगर मैं अभी मल्टीपल्स की बात करूं या मैं यहाँ पे एक्चुअल मिनट्स लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मान लो 18 मिनट हो गए, तो 18 मिनट पे कौन मीट करेगा? सिर्फ ये रिंग कौन करेगा? ये तो नहीं करेगा. 24 मिनट बात करता है, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा. ओके, नाउ इफ आई से दिस इज मे बी 24 मिनट, मैं इनिशियली कर रहा हूं, और लेट्स से दिस इज 19th मिनट, कोई भी मीट नहीं करेगा, कोई भी रिंग नहीं करेगा. दिस इज 20th मिनट, नो, नन ऑफ द रिंग्स वुड रिंग, है ना? क्लियर है? नन ऑफ द बेल्स वुड एक्चुअली रिंग. 21st मिनट, कोई भी नहीं. बट एज सून एज इट इज 24, we see this would not ring, but this would definitely ring. As soon as it is maybe 32, the last one would ring, not the first two. Tell me a common multiple for all three. So let's look at the LCM of these three numbers. What is the LCM of 18, 24 and 32? आपको बेहतर तरीका मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइज करके. बड़े नंबर से प्राइम फैक्टराइज कर दो. 19 को क्या लिख सकते, 18 को आप क्या लिख सकते हो?
क्या आप इसको 9 इंटू टू लिख सकते हो? 9 इंटू टू बेसिकली लिख सकते हो, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। 24 को क्या आप 8 इंटू 3 लिख सकते हो? यस। सो दिस इज 3 टू द पावर 1 इंटू, और 2 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी हैव अ 2 हियर। सो दिस इज 2 क्यूब 8 इंटू 3। 32 को क्या आप 8 और 2 पे पावर 5 डायरेक्टली बोलो, 8 इंटू 4 क्यों बोलना, 2 पे पावर 5। आपको क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना होता है? एलसीएम के लिए ये करना होता है कि आप सारे हाईएस्ट पावर्स देखो, क्या क्या हाईएस्ट पावर्स हैं। 2 पे पावर 2 की क्या हाईएस्ट पावर है? 2 की पावर 5 हाईएस्ट है, तो ये कंसिडर कर लो। 3 पे क्या हाईएस्ट पावर है? 2, सो इंटू 3 टू द पावर 2। सो दिस इज 32 इंटू 9। 32 into 9 is basically how much? 32 into 10 is 320। 320 में से मैं 32 माइनस कर दूं अगर, तो आई वुड बी गेटिंग द रिजल्ट ऑफ 32 into 9 which is 32, 320 minus 32 which is 288 minutes। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ऑल थ्री बेल्स रिंग एट द सेम टाइम एट 8 o'clock, 8 बजे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे मिनट्स आगे लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं 8 o'clock लिख दूँ, इनिशियली 8 इट इज, द टाइम इज 8 o'clock, तो ऑल थ्री ऑफ देम रिंग टुगेदर। अब नेक्स्ट कब होगा? द नेक्स्ट वुड बी ओनली आफ्टर 288 मिनट्स। बहुत बड़ा टाइमलाइन है, तो मैं इसको आवर्स में भी कन्वर्ट कर लूंगा। डिवाइड दिस बाय 60। सो इफ आई डिवाइड दिस बाय 60 आई कैन गो अप टू 240। 60 के मल्टीपल 60, 120, 180, 240। 240 तक अगर मैं जाऊंगा, सो 240 मिनट्स प्लस 48 मिनट्स। 240 मिनट इज बेसिकली नथिंग बट 4 आवर्स। 4 आवर्स 48 मिनट्स। 4 आवर्स फ्रॉम 8। 8 o'clock पे पहली बारी मीट किया था, इसके बाद कब मीट करेगा? तो आफ्टर 4 आवर्स 48 मिनट्स। 4 आवर का मतलब है 12, 48 मिनट का मतलब है 12:48, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कब होगा? इस टाइम पे आप 4 आवर्स 48 मिनट्स ऐड कर दो एंड यूड बी गेटिंग द नेक्स्ट टाइमर। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में बहुत बारी ऐसे बोल सकता है, जो ये क्वेश्चन गिवन है ध्यान से समझना और आप एक बार इसको सोच के बताओ कि क्या रिजल्ट होना चाहिए। 6 bells commence tolling together and they toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively। जो पहला वाला बेल है वो एवरी 2 सेकेंड्स, सेकेंड वाला एवरी 4 सेकेंड, थर्ड एवरी 6 सेकेंड्स, फोर्थ एवरी 8, एवरी 10th एवरी 12 सेकेंड, in a time span of 30 minutes, and these are given in seconds. How many times do they toll together? They commence tolling together का क्या मतलब है? Commence tolling together का ये मतलब है when we start all of these bells are tolling together। अब ये जो सेकेंड वाला बेल है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 मिनट, तो सिर्फ ये वाला टोल करेगा, इनमें से कोई और नहीं करेगा। इफ आई कंसिडर द 3 मिनट, थर्ड मिनट पे कोई भी टोल नहीं करेगा। इफ आई टेक द टाइमलाइन टू बी 4 मिनट्स नाउ, तो ये एवरी 2 मिनट्स करेगा, तो इस पे भी डेफिनेटली करेगा। ये एवरी 4 मिनट करेगा, तो यहाँ पे भी करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज आवर स्टार्ट। ये एवरी 6 पे करता है, तो ये नहीं करेगा। 8 पे करता है, नहीं करेगा। 10 पे करता है, नहीं करेगा। 12 पे करता है, नहीं करेगा। नाउ इफ आई गो टू 5 मिनट्स, none of them, but as soon as I go to 6 minutes, I know 2 2 2 6 पे भी करेगा, 4 वाला नहीं करेगा, 6 पे ये वाला वापस से टोल करेगा, और ये सारे टोल नहीं करेंगे। मुझे चाहिए एट व्हाट नेक्स्ट टाइम एंड इन अ टाइम स्पैन ऑफ 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। तो एक ये वाले टाइम पे तो इन्होंने टोल करना स्टार्ट कर लिया है, एक हो चुका है। अब आगे की बात बताओ, तो आगे की बात के लिए पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब इसका एक सिंपलेस्ट तरीका, ये तरीका पिछले क्वेश्चन में भी आप ये तरीका यूज कर सकते हो। क्या करना है करो, 2 से सिंप्लीफाई करो, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से एलिमिनेट करो, सो 1, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 2 से करो, 1, 1, 3, 1, 5, 3, फिर 3 से करो, 1, 1, 1, 1, 5, 1,
और उसके बाद 5 से करो एलिमिनेट, तो 1 1 1 1 1 सारे। ठीक है, व्हाट इज आवर एलसीएम? द एलसीएम फॉर दिस इज बेसिकली 2 1 2 3, सो 2 क्यूब into 3 into 5, 8 into 5, 2 cube is 8, 8 into 5 is 40, 40 into 3 is 120 seconds. मुझे जो टाइमलाइन गिवन है वो 30 मिनट्स का गिवन है, तो क्या मैं इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लूं? 60 सेकंड इज 1 मिनट, सो 120 सेकंड इज बेसिकली 120 by 60 which is 2 मिनट्स। या तो आप इसे 120 सेकंड्स बोलो या फिर आप इसे 2 मिनट्स बोलो, द सिनेरियो इज एग्जैक्टली सेम। नाउ इन अ टाइम स्पैन ऑफ 30, सो 30 मिनट के टाइमलाइन पे एवरी 2 मिनट अगर ये मीट कर रहे हैं तो कितनी बार टोटल मीट करेंगे? 15 टाइम्स। 15 टाइम्स इज गिवन इन द ऑप्शन, बट क्या 15 करेक्ट आंसर होगा? सोच के बताओ, 15 क्या करेक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 15 करेक्ट? बिकॉज दे कमेंस टोलिंग टुगेदर। ये सेंटेंस अगर गिवन है, इट मींस आपको ये स्टार्ट वाला भी काउंट करना पड़ेगा। तो दे हैव ऑलरेडी मेट और कमेंस टुगेदर एट द फर्स्ट स्पॉट, और उसके बाद 15 मोर, सो 1 plus 15 is actually going to be 16 and rest of them is not true. So 15 times plus 1 more time at the start. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से आप कवर करो। क्लियर है? All right, moving forward, let's look at this question. The HCF and LCM of two numbers is 18 and 180 respectively. If one of the numbers is 36, then find the other number. Okay, for two numbers n1 and n2, the product of these two numbers is always equal to the LCM into the HCF of these two numbers, the product. ये सिंपल सा छोटा सा फंडामेंटल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मतलब मैं बात कर रहा हूं, कोई भी दो नंबर उठा लो, आपकी मर्जी, कोई भी दो नंबर पिक करो, आप उनका सेपरेट एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, और चेक करो ये फंडामेंटल फैक्ट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। नाउ इफ यू नो दिस फॉर्मूला, जस्ट पुट द वैल्यूज। वन ऑफ द नंबर्स इज 36, सो लेट्स से दिस इज 36। ठीक है, आई डोंट नो द नंबर 2। ठीक है, द एचसीएफ इज 18, द एलसीएम इज 180। What is N2? 180 into 18 by 36. 2 times 9, 90. So N2 is basically 90. अब अगर आप 36 और 90 ये दो नंबर्स का HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो निकल के आएगा 18। अगर आप इन्हीं दो नंबर्स का LCM निकालोगे तो वो निकल के आएगा 180। चेक कर लो 180 होगा क्या? डेफिनेटली होगा। देख 90 तो नहीं हो सकता एलसीएम, बिकॉज ये इसमें नहीं आ रहा है। 36 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो जीरो पे एंड करेगा? 180। 90 का भी मल्टीपल जो जीरो पे एंड हो रहा है वो 180 है। इन दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल 180, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18। बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। द फॉर्मूला शुड बी वेरी थरो। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ two prime numbers is 997. Their LCM should be what? Based on the certain data that we have. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स की जब मैं बात करता हूं, तो ये मैंने पहले भी बहुत बारी डिस्कस किया है। तो को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स आर सेट ऑफ नंबर्स whose HCF is 1. तो अगर मैं को प्राइम नंबर्स की ही बात कर रहा हूं तो इनका HCF तो 100% 1 होगा। अदरवाइज अगर ये नहीं हो रहा है तो ये नंबर्स को प्राइम हो ही नहीं सकते, रिलेटिवली प्राइम हो ही नहीं सकते। कि ऐसे दो या तीन नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बट वन है कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वन होगा। नाउ n1 into n2 is equal to LCM into HCF. I know the HCF of co-prime number is 1. The product of two numbers is 997. What should be the LCM? LCM into 1 is 997. So LCM is basically 997. So cannot be determined. अच्छा ये 997, मैंने वैल्यूज चेंज करे, ये पहले यहाँ पे 117 था, तो आप कुछ भी रख दो तो उस हिसाब से ऑप्शन बी आएगा। क्लियर है? 997 because we know 997 is basically the highest 3-digit prime number. Clear है? तो this is how you are supposed to look at scenarios. Now let's look at this question. डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है ना? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। देखो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस
ज़रूर से ज़रूर आपसे पूछे जा सकते हैं और इनको सॉल्व करना, अगर आपको वो प्रैक्टिस है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के कभी परेशान मत होना। दीज आर डूएबल, आई एम टेलिंग यू, दीज आर वेरी मच डूएबल। आप देखो डेटा क्या गिवन है, द एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, आई मीन दीज टू नंबर्स आर डिफरेंट, इज एस, दीज नंबर्स आर एस एंड एच, इज 649। दो नंबर्स का अगर एलसीएम निकल के आ रहा है 649, तो आप सबसे पहले ये देखो कि वो नंबर्स क्या क्या हैं, क्या क्या वो नंबर्स हो सकते हैं। तो इनको प्राइम फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए। 649 यू शुड बी एबल टू प्राइम फैक्टराइज इट। ऑल्सो कभी भी मैं बोल दूं कि एलसीएम इज लेट्स से एनी गिवन नंबर, मैं बोल रहा हूं द एलसीएम इज 10, दो नंबर्स का एलसीएम 10 है, तो क्या आप वो दो नंबर्स को 1 और 10 ले सकते हो, हाँ या ना? क्या पहला नंबर 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1 और 10 को अगर आप कंपेयर करोगे और बोलोगे कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोल सकते हो द एलसीएम इज 10। तो कभी भी मेरे पास ऐसा कुछ भी लिख के आ जाए, एनी नंबर दैट इज रिटन हियर, आई कैन ऑलवेज टेक, if the LCM of two numbers n1 and n2 is given as 649, then first possibility I can take the numbers to be 1 and the number 649। जैसे मैंने 1 ले लिया वन ऑफ द नंबर्स, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा जो एलसीएम है वही ले लो। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैंने क्या करा, आई हैव टेकन वन ऑफ द सेट्स टू बी 1 एंड 649। इसमें कैसा है कि जरूरी नहीं है जो दो नंबर्स गिवन है मेरे पास वो बेसिकली एस और एच है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 649 ये हो जाए और ये 1 हो जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, आई डोंट नो, इट कुड बी 1 और 649 और सम अदर केसेस। अब 649 को आप प्राइम फैक्टराइज करो, जो मैं करना चाह रहा हूं। तो देखो ये 2 से नहीं जाएगा, मैं 3 से चेक करूंगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से चेक करो, मैंने 4 सब चेक नहीं कर रहा हूं, आई एम डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, सो आई एम ओनली फोकसिंग ऑन प्राइम नंबर्स। 5 से ये डिविजिबल नहीं है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? इट विल गो अप टू 63, देन वी हैव 19, सो 7 से भी नहीं है। क्या ये 11 से है? 9 प्लस 6 इज 15, 15 माइनस 4 इज 11, बिंगो, 11 से ये डिविजिबल है। आपने देखा 7 के बाद मैंने 8, 9, 10 से चेक नहीं किया, आई एम ओनली चेकिंग इट विथ प्राइम नंबर्स। 11 से चेक करो, इट विल गो अप टू 5 टाइम्स 55, देन वी हैव अ 9, 9 9 इज 99, सो 9 टाइम्स 59 आपको पता है एक प्राइम नंबर है। सो द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी फॉर द नंबर्स कुड बी, एक तो ये पॉसिबिलिटी से बन जाएंगे एस और एच, दूसरा बन सकता है 11 इंटू 59 और 59 इंटू 11। ये मैंने क्यों ऐसा बोला, बिकॉज दीज आर बोथ प्राइम नंबर्स, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम अगर निकालोगे हमेशा दोनों का प्रोडक्ट होगा। द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, मैं एस को डिस्टिंक्टली डिटरमिन नहीं कर पा रहा हूं, बट लेट्स यूज द स्टेटमेंट एस इज ग्रेटर देन 1, एच इज ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो 1 और 649 वाला पॉसिबिलिटी ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, सो वन ऑफ द नंबर्स कैन नॉट बी 1। तो द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 11 एंड 59 और 59 एंड 11। s इज ग्रेटर देन h, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है, दिस इज s, दिस इज h, s फिगर आउट करना था, ये हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर 1 से आंसर हो रहा है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 70। तो आई हैव द नंबर्स टू बी 1 एंड 649, आई हैव द नंबर्स टू बी 11 एंड 59। इसमें से सम 70 सिर्फ इसका हो रहा है, ये वाला पॉसिबिलिटी ही रूल आउट हो गया। क्लियर है कि दिस कैनॉट बी आवर नंबर, सो दीज आर आवर नंबर्स। बट व्हाट इज एस? आपसे ये नहीं पूछा व्हाट आर द नंबर्स, you have been asked what is the value of s. The value of s could be either 11 or 59, s cannot be uniquely identified, तो आप इससे आंसर नहीं कर पा रहे हो द वैल्यू ऑफ s, बट आप पहले वाले से आंसर कर पा रहे थे। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन but cannot be answered using the other statement. Option A is your correct fit. चलो आगे बढ़ते हैं। The product of two numbers is 2028 and their HCF is 13. The number of such pairs of numbers is how much? मतलब इसका क्या है कि आप दो नंबर्स लो, n1 n2 लो। अब जब आप इसका प्रोडक्ट लोगे इट शुड बी 2028, और जब आप ये दो नंबर्स का HCF निकालोगे इट शुड बी 13।
तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं जिनका HCF 13 हो जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 हो जाए? ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल हैं जिनका प्रोडक्ट भी 2028 के बराबर होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. क्या ऐसा सिर्फ एक ही नंबर पॉसिबल है? ऐसे सेट्स ऑफ नंबर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ सच पेयर्स ऑफ नंबर्स इज पॉसिबल? कितने सच पेयर्स ऑफ नंबर्स पॉसिबल हैं? ये जो वैरायटी है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है. ध्यान देना, समझना, बट एक बार आप इसको ट्राई करो खुद से. ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे. व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? आपको वो पकड़ना है पहले कि ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टार्ट कैसे करोगे. Now, pay attention. Anywhere when HCF is given, you can start assuming the numbers as HCF into A and HCF into B, where A and B are always co-prime to one another. क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हैं? जैसे देखो, मैं बोल रहा हूं कि 10 और 15 आर माई टू नंबर. समझना इसे, इस एग्जाम्पल को आप समझना. 10 और 15 मेरे दो नंबर्स हैं. क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 5? कैन आई राइट 15 एज 3 into 5? यस. अब अगर मैं इसमें से 5 को एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास क्या बचा रहेगा? 2. और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द HCF ऑफ 10 and 15, सो यू वुड से 5. तो क्या ये उसी फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट हो रहा है? 5 into A, 5 into B, where A and B are co-prime. 2 and 3 is co-prime to one another. 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. जो भी कॉमन था हाईएस्ट फॉर्म पे वो आपने एलिमिनेट कर दिया, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज एक्चुअली co-prime to one another. So whenever we are discussing ratio A and B, तो अगर आपने पूरा एलिमिनेट करना स्टार्ट करा फिर भी आपके पास कुछ बच गया, तो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म दे वुड बी ऑलवेज को-प्राइम टू वन अनदर. द टर्म्स ऑफ द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज ऑलवेज को-प्राइम टू वन अनदर. आई होप विद दिस आपको एक आइडिया लग गया कि कैसे आपको नंबर्स को अज्यूम करना है. तो यहाँ पे आप नंबर्स को क्या बोलोगे? यू वुड से योर नंबर्स टू बी 13A and 13B, where A and B have to be co-prime numbers between among themselves. अब मुझे पता है the product of these two numbers is 2028. So A into B is basically 2028 upon 13 into 13. ये कैसे करा? देखो 13 into A है, into 13 into B. So A into B is basically 13. 13 नीचे आ गया, 13 से अब इसको एलिमिनेट करो तो ये एक बार ही जाएगा. देन यू हैव 72, तो ये 5 टाइम जाएगा, और 13 5 65. उसके बाद 72 था ना, तो ये 78 6 टाइम्स जाएगा. फिर 13 से एलिमिनेट करो 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स, सो 12 आ गया. अब क्या करना है, इस पे काम करते हैं. 12 आ चुका है, तो आई नो A into B is basically 12. तो क्या क्या आप रख सकते हो? आप A की वैल्यू 1 रख सकते हो, B की वैल्यू 12 रख सकते हो, ये 12 हो जाएगा 1 into 12. आप इसको 2 रख सकते हो, इसको 6 रख सकते हो, ये भी 12 हो जाएगा. बट जैसे आपने 2 और 6 रखा है, समझना इसे, 2 और 6 को प्राइम है क्या? 2 और 6 में तो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है, इसीलिए इसको कंसिडर नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट क्या कंसिडर करोगे? 3 and 4. तो दिस इज ऑल्सो 12. क्या 4 and 3 बोल सकते हो? बोल सकते हो, बट वो तो एक ही बात हो गया. मतलब जो नंबर्स बनेंगे आपके, वो बनेंगे यहां से 13 into 1, 13 into 12. These are the one set of number. The second set of number is 13 into 3 and 13 into 4. इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता. How many such pairs? Only 2 such pairs are possible. Clear है? कैसे करना है, कैसे देखना है इन क्वेश्चंस को? I hope you have a clarity here. जल्दी हो जाता है, टाइम नहीं लगता. देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, the HCF of two numbers is 12, their sum is 96. How many such pairs of numbers are possible? So we can take the numbers to be HCF into A and HCF into B. अब मैं इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट हमेशा करूंगा. मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये नंबर्स इस तरीके से होंगे. आई वुड से these numbers are 12 into A, 12 into B, right? And I know the sum of such numbers is 96. So 12A plus 12B is basically 96. अब आप इसको जरा सॉल्व करो, देखो क्या आएगा. आप 12 कॉमन ले सकते हो. दिस वुड बी A plus B. A plus B should be 96. This will go 8 times. Now we know A plus B is such a value
which is basically 8. Now, since you know that a plus b has to be 8, you can easily eliminate such results. अब a और b का जो result होगा वो हमेशा co-prime होगा because a and b is co-prime to one another. तो आप यहाँ पे 1 और 7 ऐड कर सकते हैं. आप 2 और 6 नहीं लिख सकते हो. आप 3 और 5 लिख सकते हो. यस. क्या इसके बाद कुछ और होगा? क्या आप 4 और 4 लिख सकते हो? नो. क्या आप 5 और 3 तो आपने ऑलरेडी लिख लिया है. तो हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल? अगेन 2 सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल. एंड इफ यू लुक एट दिस डेटा तो आपने कितनी जल्दी क्वेश्चन को एलिमिनेट करा है. इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट ये था कि सिंस वी हैव अ प्लस साइन हियर तो वी हैव टू टेक 12 कॉमन. बट अगर ये 12a इंटू 12b होता तो 12 कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे. ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज दिस इज ऑल्सो इनटू. तो ये सारे एक जैसे हैं. यहाँ पे इट इज इनटू. तो आप इसको इस तरीके से देखो कि यहाँ पे भी एक 12 है, यहाँ पे भी एक 12 है और बीच में प्लस साइन है या फिर माइनस साइन है. तो उस केस में आपको सिंप्लीफिकेशन, अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं डिस्कस करूँ. इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम हियर तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये प्लस साइन है, इसका सिंप्लीफिकेशन अलग तरीके से होता है. मूविंग ऑन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF. एक बार आप इसे जरा ट्राई करो. A school has 120, 192 and 144 students enrolled for science, arts and commerce. 120, 192, 144. ठीक है. All students have to be seated in rooms for an exam such that each room has students of only the same course and all the rooms have equal number of students. मतलब क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मतलब ये डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट है, साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं. ये दिस इज आवर नंबर 120, 192, 144. इफ आई ट्राई टू एलोकेट देम इनटू वेरियस क्लासरूम्स तो मैं क्लासरूम का साइज क्या रख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ हर क्लासरूम पे मैं एक बच्चा रख सकता हूँ. आई कैन मेक अ क्लासरूम स्मॉलर इन साइज वेर इन ओनली वन स्टूडेंट वुड फिट. तो ऐसे कितने क्लासरूम लगेंगे? आप बोलोगे यहाँ पे लगेंगे 120, यहाँ पे 192, यहाँ पे 144. बट व्हाट इफ आई टेक इन वन क्लासरूम 2 स्टूडेंट्स? अगर 2 स्टूडेंट एक क्लासरूम में आएगा तो यहाँ पे 60 क्लासरूम्स वुड बी नीडेड. यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2. ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल. क्या मैं 3 बैच साइज रख सकता हूँ? चेक करते हैं. 2 + 1 3, 9 2 1 3, 4 4 8 and 1. तो मैं 3 वाले साइज पे भी बिठा सकता हूँ. दीज आर ऑल पॉसिबल बैच साइजेस. द नंबर ऑफ पॉसिबल रूम साइजेस इज 7. ये बात समझ में आ रही है? रूम साइज का क्या मतलब है? रूम साइज इज बेसिकली कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द नंबर्स. द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड. आपको अगर कम से कम रूम में सबको बिठाना है तो एक रूम में ज्यादा से ज्यादा लोग बिठाने हैं. ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं बताऊं कि यार एक ही रूम पे ज्यादा से ज्यादा लोग बिठा दूं तो ऑब्वियसली यू वुड बी लुकिंग एट लेसर नंबर ऑफ रूम्स. कम से कम रूम में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ जाएंगे. बट ये सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए. ये सारा जो भी गिवन डेटा है ये एक्चुअली में फिट होना चाहिए. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? आई वुड बी टेकिंग 120, 192 एंड 144. इनका मैं पहले HCF निकालूंगा. HCF निकालने का तरीका आपको पता है. आप इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करो. सो 120 is 12 into 10. 12 into 10 is basically 4 into 3 into 2 into 5. 4 into 3 का मतलब 8 पे बात कर लो. So this is 2 cube into 3 into 5. 8 5 is 40, 40 into 3. Okay. ये 192 है, ये 144 है. 192 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 192 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 24 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है. 144 is 12 into 12. 12 is basically 4 into 3, so 2 to the power 2 into 3. और ये दो बार ही हो रहा है 2 to the power 2, so it becomes 2 to the power 4. यहाँ पे लिख देता हूँ 2 to the power 4 into 3 to the power 2. 16 into 9. क्लियर है?
सिमिलरली 192 को अगर मैं देखूं तो मैं 2 से अगर एलिमिनेट करूं सो 9 टाइम्स एंड 2 सो 6 टाइम्स, फिर 2 से अगर मैं एलिमिनेट करूं 48, फिर 2 से अगर मैं एलिमिनेट करूं सो 24, 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 का मतलब है 2 टू द पावर 6 इंटू 3। नाउ क्या कॉमन निकल के आ रहा है इनमें से? 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 4, सो 2 टू द पावर 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। So this is 8 into 3, 24. So these are all multiples of 24. तो अगर मैं एक क्लासरूम पे देखो, the only time that you need, अब मैं जल्दी जल्दी भी कर सकता हूं, मैं आपको बस समझाने के लिए इस तरीके से बात कर रहा हूं कि आपका पहला टास्क होगा ऐसे क्वेश्चन पे, फाइंड द HCF। वंस यू आर डन विद द HCF तो आप इसको 24 से सारे वैल्यूज को डिवाइड करो, ठीक है? यू डू दैट एंड देन यू सी कि ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 टाइम्स, मतलब 5 क्लासरूम्स लगेंगे यहाँ पे कितने क्लासरूम्स लगेंगे 192 पे, तो यू नो इट इज गोइंग 6 टाइम्स, और 24 इज एक्चुअली गोइंग 8 टाइम्स, नॉट 6 टाइम्स। और ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 6 टाइम्स। नाउ लेट्स ऐड द रूम्स, तो टोटल हो गए 19 रूम्स। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स। लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स इसलिए बोल रहा हूं कि एक रूम पे आपने ज्यादा से ज्यादा लोग बिठा दिए। द लीस्ट नंबर ऑफ रूम नीडेड इज 19 रूम्स। Now, the number of possible room sizes is 7. Room sizes का मतलब है common factors. Last वाला भी एक बार देख लेते हैं। Largest possible room size is 24 students in each room. ठीक है, this is absolutely correct. So 1 and 3 all the statements are correct. हो सकता है अब एक बारी बस मैं ये चेक कर लेता हूँ कि common factor क्या क्या आ जाएगा। तो आप चेक करके बताओ, क्या आप हर क्लासरूम पे एक स्टूडेंट रख सकते हो? सो आई एम लुकिंग एट कॉमन फैक्टर्स। यस। क्या 2 रख सकते हो? यस। क्या 2 स्क्वायर रख सकते हो? यस। क्या 2 क्यूब रख सकते हो? यस। क्या आप 3 रख सकते हो? डेफिनेटली। अब 3 इंटू 2 रख सकते हो? 6, यस। 3 इंटू 4 12 रख सकते हो? यस। 3 इंटू 8 24 रख सकते हो? डेफिनेटली। सो हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सारे बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, and here it is mentioned 7, so this is false. Only 1 and 3, option B is our correct fit here. Clear है? कॉमन फैक्टर्स का क्या मतलब है वो समझ में आ रहा है? ये बेसिकली रूम साइजेस को इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप उनको फिट कर सकते हो। आई कैन एक्चुअली make the students fit in a classroom of 4 students per classroom, 8 students per classroom, 3 students per classroom, 6 students per classroom, 12, 24, even 1 student in every classroom. इसी के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, हाँ या ना? चेक करो। A can X, a can X contains 399 liters of petrol and can B contains 532 liters of petrol. They are to diesel. They are to be bottled in bottles of equal sizes, so as the whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liter is an integer. How many different bottle sizes are possible? Different bottle sizes का मतलब ही है common factors. हाँ या ना? कॉमन फैक्टर्स पे अगर काम कर लिया तो ये कर लोगे। कॉमन फैक्टर्स के लिए आपको इनको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन क्विकली। तो ये 3 से ही स्टार्ट होगा, 2 से तो जाएगा भी नहीं। 3 से स्टार्ट करो, सो 133। अब देखो ये 3 3 और 1 है, तो डेफिनेटली ये 3 से एलिमिनेट नहीं होगा। 5 से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 7 से हो सकता है क्या? 7 से अगर आप जाओगे तो ये 63 7 से हो जाएगा। 7 से 1 टाइम, उसके बाद 63, सो इट इज 9 टाइम्स। 19 एक प्राइम नंबर है, सो 19 पे छोड़ दो। नाउ 532, 2 से एलिमिनेट करो, सो 2 टाइम्स 1 3 13, सो 6 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। अगेन विद 2 वी गेट 133। 133 का मतलब है 7 टाइम्स 19, 19 का मतलब है 1। ओके, सो 399 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7 इंटू 19, और इंटू 1 भी कर लेना, बिकॉज यहां पे आप फैक्टर्स की बात कर रहे हो तो 1 भी एक फैक्टर है। 532 पे आ जाओ। 532 वुड बी रिटन एज 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 19। अब मुझे चाहिए कॉमन फैक्टर्स। आप जरा बताओ कॉमन फैक्टर में क्या 1 आएगा? यस। क्या
3 आएगा डेफिनेटली, क्या 7 आएगा? यस 3 आ रहा है क्या? 3 नहीं आ रहा है, 3 यहाँ पे नहीं है, सॉरी वी डोंट हैव अ 3, we do have a 7, we do have a 19, so ये 3 पॉसिबल साइजेस हैं। कुछ और हो सकता है क्या? यस अगर यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 7 कॉमन है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे भी 19 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 19 इंटू 7 इज 133। तो ये 4 पॉसिबल बॉटल साइजेस हैं। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट फिट हियर फॉर द क्वेश्चन इन द ईयर 2024। आई होप आपको इस पे क्लैरिटी, आप ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी कर लेंगे। बट इन सब क्वेश्चंस का पॉइंट क्या है? इन सब क्वेश्चन का ये पॉइंट है, ये अप्रोच है कि आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट करो, रैंडम नंबर्स लो और आप प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट करो। अगर इस पे क्लैरिटी होगी तो क्वेश्चंस को देखने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे 421, 427 when divided by the same number leaves the same remainder as 1, remainder 1 आएगा। All right, remainder 1 आ रहा है। How many numbers can be used as the divisor or factors? देखो यहाँ पे है तो ये बड़ा नंबर है, ये उससे छोटा नंबर है, तो ये उसका फैक्टर हो सकता है, उसका डिवाइडर हो सकता है। In order to get the same remainder as 1, okay, तो अगर मैं 1 हटा दूं इस नंबर से, if I subtract 1 from 421 it would be 420, if I subtract 1 from 427 it would be 426। अब जो भी नंबर्स है वो इनके कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए। अब इनका कॉमन फैक्टर निकाल लो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? 420, सो 2 से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 210, फिर 2 से करोगे तो 105, फिर 3 से करोगे तो 35, फिर 3 से 5 से करो 7, फिर 7 से करो 1। नाउ 426, 2 से करो 213, 3 से करो 71, 71 is a prime number. Let's keep it to that. Now 420 can be written as 1 into 2 square into 3 into 5 into 7. 426 can be written as 1 into 2 into 3 into 71. अब जरा समझना, मुझे कॉमन फैक्टर चाहिए तो मैं बोलूंगा 1 भी एक कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 1 एक कॉमन फैक्टर है, 2 एक कॉमन फैक्टर है, 3 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर, और 2 और 3 आ गया तो 2 इंटू 3 6 भी एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, बट क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन सिर्फ कॉमन फैक्टर पे लिमिटेड नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन यू डिवाइड द नंबर्स द रिमाइंडर हैज टू बी 1। आप किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हो तो उस पे तो कोई रिमाइंडर नहीं आता है। तो ये बोलना कि अगर आप 1 से 421 को डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 1 आएगा? ये तो नहीं आएगा, तो इसको यहां से एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट है। बट एज सून एज यू डिवाइड 421 बाई 2 या 427 बाई 2, रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये बिल्कुल हो सकता है। 421 बाई 3 रिमाइंडर 1 आएगा, 427 बाई 3 रिमाइंडर 1 आएगा, 421 by 6, 427 by 6, both of these cases remainder is 1. So these three are definitely possible. Option C. Clear है? Follow कर पा रहे हो? ये भी आपका 2024 का सवाल था. Now, you will take this question as a homework. This is based on the concept of co-prime numbers, जिसको हमने एक्सटेंसिवली डे 5 वाले क्लास पे, डे 3 वाले क्लास पे, रिमाइंडर थियरम पे भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. डे 5 पे वी हैव डिविजिबिलिटी रूल, उस पे भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. तो इन पे अगर आपको कमांड है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली कर सकते हो. आई विल गिव यू सम टाइम, आप इसको नोट डाउन करो और इसको जल्दी से मार्क करो. क्वेश्चन नंबर 8, क्या पॉसिबल रिजल्ट होना चाहिए? प्लीज टेल मी द रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स. प्लीज बी क्विक. आई एम सजेस्टिंग कि आप इस वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ पे ट्राई करो. अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन हमारा. ट्राई करो, रिस्पॉन्ड करो क्या आ रहा है. नेक्स्ट, अनदर लास्ट क्वेश्चन. आप इसको ट्रिक से सॉल्व करना जो हमने आपको बताया है. और पहले तो वो नंबर, अब देखो ट्रिक से सॉल्व करोगे, द पॉइंट इज व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर. जैसे ये सम ऑफ डिजिट्स पे बात करेगा, मतलब एक्चुअली में आपको नंबर निकालना पड़ेगा. वो नंबर यहाँ पे तो गिवन है नहीं, तो इस बार आपको पूरा सॉल्व करना होगा प्रोसेस के थ्रू. जो प्रोसेस बताया था रिमाइंडर के लिए, रेसिड्यू के लिए, आई होप वो आपको याद है. अगर नहीं है
तो एक बारी बस यहाँ पे आप इसे लिख लो। क्या था प्रोसेस? फॉर ओनली रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन द आंसर इज कॉमन मल्टीपल प्लस रिमाइंडर. फॉर रेसिड्यू बेस्ड क्वेश्चन द आंसर इज कॉमन मल्टीपल माइनस रेसिड्यू. और रेसिड्यू कैसे निकालते हैं? तो एक एक करके डिफरेंस लो, कॉमन डिफरेंस लो, कॉमन डिफरेंस लो, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, वो हो जाएगा आपके लिए रेसिड्यू. रेसिड्यू निकालो, जैसे 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे नंबर को रिमाइंडर 7 आएगा, 12 से डिवाइड करोगे 11 आएगा. तो 6 माइनस 5 इज 1, 8 माइनस 7 इज 1, 12 माइनस 11 इज 1. आपके लिए रेसिड्यू निकल के आ गया 1. कॉमन मल्टीपल निकाल लो, 6 8 12 का, कॉमन मल्टीपल माइनस 1 कर देना, आपका नंबर आ जाएगा. स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पूछा है, उसके बाद उसका सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेना और मुझे कमेंट कर देना कि क्या आ रहा है. ये इंपॉर्टेंट है. आई होप ये एक्सटेंसिव लेक्चर से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको HCF LCM के क्वेश्चंस को टैकल करना है. देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लो एंड आई ट्रस्ट कि आप इस पर अच्छा कर पाएंगे. डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. जो शॉर्ट ट्रिक्स, जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, उन पे बार बार आप रिपीटेशन करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा. ऑल्सो इफ यू विश टू एनरोल, अब देखो ये दिस इज ओनली लिमिटेड फॉर 2027 स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉट फॉर 2026. क्रैश कोर्स सिंस इट इज जस्ट 2 months नाउ, तो वी आर रिड्यूसिंग द प्राइस फॉर दिस. ये आपको अगेन अंडर 4 के आ जाएगा. अगर आपको एनरोल करना है, दिस इज द राइट टाइम. इसके बाद देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनरोलिंग इनटू द कोर्सेज, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम. ठीक है, ऑल राइट. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.